Dr. Amrita, and we have started the Facebook Live on menstrual disorders, actually menstrual hygiene, the myths and facts. Now, if we start with menstrual hygiene, the first thing what we should know, first of all, this Facebook Live is for World Menstrual Hygiene Day. That was on 28th of May. That was yesterday, and we are here for the live because I want to share as a member of SMDHM and as a gynecologist that menstruation and menstrual hygiene is nothing to worry about, and it should be a very normal fact, and that is the theme of this year, that is 2023. That is, it should be a normalized fact by the end of this year. That means 2023. So that's our theme today, and that's why we are here. Starting with the menstrual cycle, we all know about it. It's like a cycle of like 28 plus minus 7 days, where in between like around 13 to 14 days we have ovulations, and the first 5 to 6 days are follicular period, and then after that we'll have ovulation around 14 days and we'll have periods at around 28 days. Now, by the time, if you have any questions in between, so please keep on posted so that I can interact with you wherever I get those questions. Now, going to the phases, as it is said, I hope you can see it, like it is growing follicle, most of this is growing follicle in the follicular phase. Then we'll go for, this is the phase of ovulation, and when you are not pregnant, then the corpus luteum, which has been developed along with the uterine endometrium, which is developed with the help of the hormone, it shades out. Now that is menstruation, so that is a part of us. So when I will go to the myths and facts of menstruation, then I'll say that nothing to worry about it, or nothing is there about the impure blood or so, because this is not impurity. It is our part which is coming from our body with the effect of hormones. Now when we see the normal menstrual cycle, keep it so that I hope you can see. Yes. So if we see the normal menstrual symptoms, what if we see the normal symptoms is fine, you know, we have this bloating kind of sensations, and along with that bit of cramps and tenderness, which is very common even in the first day and the first 2 days or so. This is natural, but which will be relieved by your home remedies and so. But if you if there is like mood swings or some symptoms, or there is moderate to severe pain that you can't do your physical activity, then you should see your doctor for it, why it is happening. Even if it is the duration of the cycle, if it is more than 5 to 6 days or 7 days, and the frequency is more than 28 plus minus 7 days, if it is beyond 28 plus minus 7 days, then you should see your gynecologist for sure. Now, what are the causes of periods? There are so many, you know, but the most important is stress. Stress is the most common reason, and along with that, if there is change in sleep patterns, and if you are taking any new medications or so, that could also lead to abnormal periods. Now again we see, if again one of the important reason is this birth control pill. If your doctor has given you birth control pill, and even after that, like you have taken it in the irregular way, or the way she has not explained to you, she has explained to you but you have taken it in a wrong way, then irregular menstruation can also happen. It could also happen in case of any of the gynecological disorders like fibroids or polyps, or any cancers, or in vaginal trauma, or it could be due to infection and pregnancy. Please keep on posting your questions so that we could get it. And these are the alarming symptoms when it is very heavy, and
and when there is spotting, like spotting after first 2 days you'll have spotting, or in the first fewer days, first 2 or 3 days you'll have spotting, then after that you'll get your periods. There is intense cramping, or there are large blood clots. These are all alarming symptoms of periods. Mechanism is very clear, this is under control of some hormones which is released from our hypothalamus, and it acts from our head, from our brain, and it acts on the uterus and the ovary, and it causes menstruation. So how do you know, like कैसे पता चलेगा whether your periods is normal or not? डेली लाइफ अगर हैम्पर हो रहा है, अगर पेन के मेडिकेशंस लेने के बाद भी वो रिलीफ नहीं हो रहा है, पेल्विक डिस्कम्फर्ट, पेट में दर्द बना हुआ है, और जो सिर्फ पहले 1-2 दिन नहीं उसके बाद भी कंटिन्यू कर रहा है, तो यस ये नॉर्मल नहीं है। अलॉन्ग विथ, फिर से बोला, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर पीरियड्स का डेट 28 ±7 डेज के अंदर आपका नहीं आता है, इसके अलावा या बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहा है पीरियड, 7-8 डेज के बाद भी थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग होता है, यस दिस इज नॉट नॉर्मल एंड यू शुड सी योर डॉक्टर। सी इसके बाद पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या ब्लड कलर्स चेंजेस होते हैं पीरियड्स के टाइम पे। ब्राइट रेड हो सकता है, डार्क रेड हो सकता है, और पिंक भी हो सकता है। पिंक मोस्टली बिगिनिंग के टाइम पे होता है और एंड के टाइम पे होता है, और ये जो ब्राइट रेड होता है ये मोस्टली बिगिनिंग ऑफ द साइकिल में होता है, और ये रीसेंट ब्लीडिंग को दिखा रहा है। और अगर डार्क कलर का हो रहा है तो वो ओवर द कोर्स, मतलब पहले स्टार्ट हो गया उसके बाद धीरे धीरे डार्क कलर की पीरियड्स होते हैं। क्या क्या खाना चाहिए पीरियड्स के टाइम पे? इट इज ऑलवेज हेल्दी फूड जो न्यूट्रिशियस हो, और जो बहुत ज्यादा फैटी फूड या बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं लेना चाहिए। यू शुड डू लाइट एक्सरसाइजेस, वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप जिंजर्स वगैरह ले सकते हो अगर पेन एब्डोमेन कम करना है, तो दैट इज अ गुड होम रेमेडी। सेल्फ केयर, हम लोग अपना केयर कैसे करेंगे? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट इज बीइंग स्ट्रेस्ड नाउअडेज इन मेंस्ट्रुअल हेल्थ, के अपना केयर करना है, न्यूट्रिशियस चीजें खाने हैं, कंफर्टेबल वेयर, मतलब जो कपड़े में हमें दिक्कत ना हो वैसे कपड़े पहनने हैं। आप जरूर से जरूर नहाइए पीरियड के टाइम पे, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये मिथ है कि नहीं नहाना चाहिए, और योगा का प्रैक्टिस आप कर सकते हो। पेन किलर अगर जरूरत है आप लीजिए, नॉट नेसेसरी हमेशा, और पानी बहुत अच्छे से पीजिए। अल्कोहल अवॉइड करें तो इट्स बेटर। पीरियड की प्रॉब्लम एलिमिनेट कैसे करेंगे? ये बिल्कुल घरेलू तरीका है कि फ्लूइड्स अच्छे से लेना है। विटामिन सी रिच फूड, मतलब आपको नींबू या संतरे, ये सारी चीजें ज्यादा लेनी है। टर्मरिक हल्दी आप ले सकते हो। एप्पल सीडर विनेगर, ये अच्छा होता है पेन वगैरह कम करने के लिए। हॉट शावर्स आप ले सकते हो अगर बहुत दिक्कत हो। हीट पैक्स यूज कर सकते हो, बट एब्डोमिनल मसाज ना करना इज अ बेटर ऑप्शन। लेट्स टॉक अबाउट पीरियड मिथ्स। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं, जिसके लिए ये फेसबुक लाइव है। मिथ्स नंबर 1, ड्यूरिंग पीरियड्स द गर्ल्स आर इम्प्योर। घर में बोला जाता है कई बार, अभी भी कुछ रूरल पोर्शंस ऑफ इंडिया में इट इज सेड दैट आप इस टाइम पे आप अशुद्ध हो, आप अच्छा नहीं हो, आप सेक्रेड प्लेसेस में नहीं जा सकते हो, मंदिर में नहीं जा सकते हो, खाना नहीं बना सकते हो क्योंकि आप शुद्ध नहीं हो। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैंने फिर से बोल रही हूँ, और एक बार बोला भी, जो ब्लड आ रहा है वो आपकी बॉडी का पार्ट है। बच्चेदानी के अंदर जो लाइनिंग्स बनते हैं वो पीरियड के टाइम पे निकल के आ जाते हैं अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो इस समय। तो इसीलिए इट्स अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप इम्प्योर होते हो। सेकेंड थिंग्स, फूड्स लाइक कार्ड, टर्मरिक एंड पिकल्स डिस्टर्ब द मेंस्ट्रुअल फ्लो। अगर आप अचार ले लेते हैं या दही ले लेते हैं या इमली वगैरह ले लेते हैं
ये आपके पीरियड को डिसाइड नहीं कर सकते, आपके फ्लो ऑफ पीरियड्स को। ये सिर्फ तभी डिसाइडेड होगा जब आपके बॉडी में हार्मोनल कमी होगी, अदरवाइज ये कोई भी खाना आपके पीरियड्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। मिथ्स नंबर 3, तीसरा, सैनिटरी प्रोडक्ट शुड बी केप्ट प्राइवेट एंड कवर्ड इन पेपर व्हेन परचेसिंग। सी, हर बार हम लोग खरीदने जाते हैं तो दुकान से भी ऐसे ही देते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अदर्स कॉमोडिटीज आप खरीदते हो, जैसे आप ब्रश लेते हो, आप टूथब्रश या टूथपेस्ट खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, वो अपने पर्सनल हाइजीन के लिए होता है। सेम एट द सेम टाइम ये जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपके पर्सनल हाइजीन के लिए होता है, तो इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप यू आर अ गर्ल एंड यू आर 12-13 years ओल्ड, उसके बाद पीरियड्स आना ही है, और ये दिस इज अ boon given to a girl that when the period comes then only you can be a motherhood is a bliss। तो ये कोई शर्मनाक बात नहीं है कि आपको पीरियड्स आ रहे हैं, तो इसको ऐसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए that this is a boon to us। Coming to fourth myth, girls having their periods should not touch or go near plants may die। ऐसा नहीं होता, वो भी एक जीव है, आप भी एक जीव हो, और periods again it is not a impure thing, बल्कि उस टाइम पे you take care of your plants because they need that care, you go for it and don't think it is impure। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी रिसर्च ऐसा नहीं कहता कि प्लांट्स खराब हो जाते हैं when you will have periods। Myth number 5, girls having their periods should sleep in a separate shade or a different room। Menstruation is not contagious, ये कोई infectious disease नहीं है जो और किसी में फैल जाएगा, तो इसमें अलग से सोने लायक कोई बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि प्रिकॉशनरी दैट आपके अगर कपड़े में कुछ धब्बा लग जाता है तो वो आपके लिए बहुत शेमफुल हो सकता है, ऐसा कुछ, बट उसके लिए प्रॉपरली आप अगर पीरियड्स पैड्स यूज करें, आजकल बहुत टाइप के पैड्स आते हैं जो नाइट पैड के लिए भी होते हैं। अगर आप ग्रीन मेंस्ट्रुअल ड्राइव की तरफ जाए तो आप मेंस्ट्रुअल कप यूज कीजिए, दैट इज फार मोर सेफर एंड स्टेनिंग के चांसेस नहीं होते हैं। Myth number 6, any form of physical activity can disturb the menstrual flow। Not at all, people are doing sports day in and day night, and along with that you can do yoga during periods, not at all, ये कोई flow disturb नहीं करता। Myth number 7, a girl should not talk about periods in public। That is what we want, you talk about periods, because बहुत सारे बच्चे 12-13 years के जो आज जिनको पीरियड्स हो रहे हैं उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, एंड दे कांट टॉक टू इट विद देयर मदर इवन, और इवन देयर सिबलिंग्स और सो। ऐसा नहीं होना चाहिए, यू टॉक अबाउट इट सो दैट जो हाइजीन का प्रॉब्लम्स रूरल इंडिया में अभी भी है, जिसके वजह से इतने इन्फेक्शंस फैलते हैं, हम बात करेंगे तभी वो प्रॉब्लम दूर होगी। So you please talk about periods. It is not a shameful thing. How does periods affect women's personality? ये आपकी एजुकेशन, हेल्थ, डिग्निटी, इकोनॉमिक सबके ऊपर इफेक्ट करता है। क्योंकि आप अगर उस टाइम पे आप ये सोच रहे हो कि हमें स्कूल नहीं जाना क्योंकि हमें पीरियड्स हो रहा है, तो आप स्कूल के चीजों से, स्कूल में जो सिखाया जा रहा है, फैसिलिटीज है, उससे आप पीछे हो जा रहे हो। अलॉन्ग विद दैट आप अपने आप को ये सोच रहे हो कि मैं इम्प्योर हूं, तो उससे क्या हो रहा है, आप डिग्निटी एंड अपना कॉन्फिडेंस ये भी लूज कर रहे हो। सो दिस इज नॉट एन इम्प्योर थिंग। सो डोंट लूज योर पर्सनैलिटी, योर कॉन्फिडेंस because of this thought। Let's talk about sanitary pads। This is also a burning issue, what we should talk about। Advantages are these are like there are so many sanitary pads। आजकल तो odor free होता है, green drive में भी चल रहा है, which is made most of cotton, और non toxic भी होता है। This is safe, but we should know how to dispose it। कैसे इसको फेंकना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। कहीं पे भी आप नहीं फेंक सकते हैं। बाहर से किसी जानवर होता है, डॉग्स होते हैं, वो उसको लेके लिटर अराउंड करते हैं। सो यू शुड मेक इट लाइक अ प्रॉपर वे, अच्छे से फोल्ड कीजिए। जो प्रिंटेड
उसमें कागज होता है, उसमें अच्छे से पैक करिए एंड प्रॉपर डस्टबिन में इसको फेंकिए. डोंट थ्रो इट इनसाइड द कॉमर्ड. कोई भी टैम्पून या सैनिटरी पैड डायरेक्टली ऐसे करके किसी कॉमर्ड में मत डालिए, बिकॉज इट इज नॉट डिसॉल्वेबल. What happened to your soil pack? See what happened to your soil pack. This is important for our environment. This is important for green drive. कि आप ऐसे नहीं फेंक सकते हो. This is creating nuisance. So the way of disposal should be very correct. Menstrual waste load. आप इसको देख के चौंक जाएंगे कि कितना हमारे पास menstrual load है, जो अराउंड 28% रूटीन वेस्ट के साथ डिस्पोज हो जाता है, 28% ओपनली डिस्पोज हो जाता है, 33% को हम बॉडी कर देते हैं और 28% जला देते हैं. सो दिस इज क्रिएटिंग न्यूइसेंस इन आवर एनवायरमेंट. अराउंड 12 बिलियन पर ईयर ये हम लोग डिस्पोज ऑफ करते हैं. दैट इज ओनली इंडियन लोड ऑफ मेंस्ट्रुअल वेस्ट. So we should think about alternative methods. What are the alternative methods? Menstrual cup. This is very good. What I feel. दो sizes में मिलते हैं, एक small एक large size में मिलते हैं. 1 और 2 दो sizes है जिनके periods कम होते हैं, scanty periods होते हैं, cervix low है और 30 years अभी तक reach नहीं किए हैं, वो लोग ये size number 1 यूज कर सकते हैं. और साइज 2 जो है वो जो 30 इयर्स ऑलरेडी हो गए, सर्विक्स थोड़ा हाई है, हेवी पीरियड जाते हैं, ऑलरेडी दे हैव गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड, उन लोगों को यूज करना चाहिए ये टाइप 2. हाउ टू यूज इट? सारे पैक में लिखा रहता है कैसे यूज करता है. फिर भी आपको बहुत अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप एक बार आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाइए, सो दैट दे विल लाइक डिस्प्ले कैसे ये करना चाहिए. बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो हाइजीन मेंटेन कीजिए. वॉश योर हैंड. उसके बाद फोल्ड करना होता है उसको और फिर आपके वेजाइना में इंसर्ट करके छोड़ देना होता है. पिंच तक आप फिर उसको अंदर डालिए और उसको छोड़ दीजिए. वो आपके जो नीचे वाला बच्चेदानी के जो नीचे वाला पोर्शन होता है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं उसमें अटक जाएंगे. ठीक है. फिर रिमूविंग द कप. फिर से आपका हैंड वॉश इज इंपॉर्टेंट. कप को पिंच कीजिए, धीरे से बाहर लाइए, उसको एम्प्टी कीजिए क्योंकि उसके अंदर ब्लड होगा और उसको वॉश कर लीजिए वाटर के साथ. बस दैट इज डन. नो स्कोप ऑफ स्टेनिंग इन इट. सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू हैव योर एनवायरमेंट सेफ. दिस इज अगेन कैसे हम ये वॉश यूज कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल कप को. यू कैन ऑलवेज गो टू योर प्रोवाइडर, जो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो आपको ये एक्सप्लेन करेंगे. सी तीनों टाइप के दिखाए हैं यहाँ पे, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज टाइप ऑफ कप. ये मोस्टली यूज होता है जब कैपेसिटी 30 ml से, ये जिसकी कैपेसिटी 30 ml से ज्यादा होता है, वजाइनल डिलीवरी जिनका हो चुका है उसमें यूज होता है. मीडियम वाला कप आप सिजारियन सेक्शन जिनका हुआ है उसमें यूज करते हैं. एंड स्मॉल वाला कप जो होता है जिनकी ऑलमोस्ट 15 इयर्स ऑनवर्ड्स एज ग्रुप में आप यूज कर सकते हैं. इसकी कैपेसिटी कम होती है, करीब 18 ml. बेनिफिट्स मैं बोल चुकी हूँ. 6 से 8 घंटा आप आराम से यूज कर सकते हो. 5 से 10 साल तक यूज कर सकते हो. कुछ इट फील्स गुड एंड स्टेनिंग के चांसेस ऑलमोस्ट निल होते हैं. इसके अलावा ये कुछ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है जो पैड्स कॉटन के बनाए हुए होते हैं, वो आप वॉशेबल होते हैं, वो आप यूज कर सकते हो. ये इको फ्रेंडली है और ये दुकान में भी अवेलेबल होते हैं. पीरियड पैंटीज, ये भी एक नया मेथड है, अभी ये आ गया है. जब आपके पीरियड्स के अमाउंट कम हो जाते हैं अराउंड 5th-6th डे में, तब ये पीरियड पैंटीज आप यूज कर सकते हैं. कॉटन टैम्पून्स, ये भी आप यूज कर सकते हैं, बट बेटर टू यूज मेंस्ट्रुअल कप इज अ बेटर ऑप्शन. हाउ टू मेंटेन हाइजीन, इसकी बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम हाइजीन कैसे मेंटेन करें. हेल्थ हैजर्ड क्या हो सकते हैं, इसके वजह से इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हैंड वॉश और हैंड वॉश है. हैंड वॉश पैड बदलने से पहले, हैंड वॉश अगर आप पैड को फेंक रहे हैं उसके बाद आप कोई भी एक्टिविटी करें उसके लिए हैंड वॉशिंग इज नेसेसरी. उसके साथ साथ आप जो रेगुलर बाथ लेना, जो एक मिथ है कि नहीं लेना चाहिए पीरियड्स के टाइम पे, ऐसा नहीं होना चाहिए. यू टेक रेगुलर बाथ. अलॉन्ग विद दैट जब भी आप वॉशरूम जाए चेंज करने, बहुत अच्छे से
अपने लोअर पार्ट्स, वजाइना और नीचे के पूरे पार्ट को अच्छे से धोइए वाटर से, प्लेन वाटर, और कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। कोई अलग सा वॉश, वजाइनल वॉश वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं होती है, बट हैंड वॉश सोप से बहुत अच्छे से कीजिए और नीचे वाला पार्ट पानी से अच्छे से धोइए। और जो मिथ्स और टैबूज है जो जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, उन सबको अपने दिमाग से हटाने की कोशिश कीजिए और लोगों को अवेयर कीजिए इसके बारे में। ये लाइव और ये सारे जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड बातें हैं जो कल से लेके आज तक बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट अपने अपने तरीके से, कोई इंस्टा में, कोई फेसबुक में, कोई डायरेक्टली किसी कॉलेज में जाके या स्कूल्स में जाके, कोई अपने हॉस्पिटल में ये ड्राइव चला रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आप खुद अवेयर हो जाए, अपने बच्चों को अवेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सो दैट सब लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में एजुकेटेड हो जाए। अगर सब लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तभी ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन हम लोग पूरे इंडिया में ये हाइजीन को बढ़ा पाएंगे। एंड दैट इज आवर मोटो। नाउ एवरी वुमन इज अ सुपर वुमन, दैट आई ऑलवेज से कि आप सब लोग उतना ही इंपॉर्टेंट हो अपने अपने जगह पे, बीट होम मेकर, बीट आप कोई भी जगह पे काम करते हो, कोई भी काम करते हो, बट फिर भी आपकी हेल्थ, आपकी नेसेसिटी, आपकी हाइजीन इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ इट एंड स्प्रेड अवेयरनेस। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? Any other questions? If you do have any questions, so you can please write to my email ID, that is AMRITA. I'll write it down in the message box also. AMRITA Amrita NBMC 2000 @gmail.com. Or you can message in this number 77 84 84 94 51. Thank you.